अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि कल के लेक्चर में जो प्रीवियस हमारा लेक्चर रहा है तो उसमें वी वर एबल टू differentiate, we are able to define a pair of congruent triangles and a pair of similar triangles. We know that two triangles, two figures are said to be similar if they are two polygons are said to be similar if they have the same shape, but it is not necessary they can have the same size. If they have the same size, we can say that they are also similar. And also वहां पे उनके लिए कंडीशन ये भी रही है कि their corresponding angles are equal, उनके corresponding angles बराबर होते हैं, and corresponding sides are in equal proportion, और corresponding side जो है वो equal proportion में है. तो we can say that any two figures, any two triangles which are having the same shape, but it is not necessary they can have the same size. If they have the same size, we can say that they are also similar, but their corresponding angles must be equal, उनके corresponding angles बराबर होते हैं, and उनके जो corresponding sides का जो ratio है they are in equal proportion, वो same ratio में होते हैं. And on the other hand, congruent triangles are those triangles which are having same shape as well as same size. उनकी shape और size बराबर होगी. That means when we put one triangle on another, that very triangle completely overlaps the other triangle. Therefore we can say that all congruent triangles are similar, but we can say that all similar triangles are not congruent. ठीक है ना बेटा? तो आज का टॉपिक थोड़ा सा प्रीव्यू किया था प्रीवियस लेक्चर का. तो आज का टॉपिक व्हाट वी हैव टू डू टुडे, वी हैव टू प्रूव द थेल्स था, वी हैव टू प्रूव द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी था. तो व्हाट इट इंडिकेट्स, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है क्या? वी आर गिवन इन ट्राइंगल ABC, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल ABC दी गई है, थेल्स था एज पर द थेल्स था गिवन बाय द थेल, प्रूव्ड बाय द थेल, ठीक है ना, वेल नोन मैथमेटिशियन. तो यहाँ पे हमने इफ वी आर गिवन अ ट्राइंगल, इट्स आल्सो नोन एज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बिकॉज यहाँ पे you will see further, so you will see a line divides two sides in a certain proportion, in an equal proportion. तो हमें दिया गया है, we are given a triangle ABC, हमारे पास triangle ABC है. In triangle ABC, if a line intersects two sides, देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास line DE है. DE we are given a line, it intersects two sides. ये दो sides को intersect कर रही है. किस side को? Side AB कहाँ पे? At point D, एंड साइड AC को एट पॉइंट E पे. ठीक है ना, इतना ही नहीं दिया गया है. एंड इज पैरेलल टू थर्ड साइड, जो दो साइड्स को इंटरसेक्ट करती है उनको छोड़ के जो रिमेनिंग साइड ट्रायंगल का है तो उसे क्या है, उसे वो पैरेलल है. ठीक है ना बेटा? देयरफॉर वी आर गिवन दैट, हमें दिया गया है तो व्हाट इट स्टेट्स दैट इफ इन या इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स two sides of triangle ABC at two distinct points. कहाँ पे? Two distinct points. ठीक है ना बेटा? Let the points be D. If a line intersects two sides at two distinct points, that is point D and E. ठीक है ना बेटा? Comma and is parallel to थर्ड साइड, तो थर्ड साइड है तो दैट इज पैरेलल टू BC. देन इट डिवाइड्स these two intersected sides, it divides two sides in equal proportion, that is why it is known as basic proportionality theorem. तो what we have to prove, we are given that, हमें दिया गया है लाइन D इंटरसेक्ट कर रहे हैं साइड्स AB और AC को एट पॉइंट D एंड E, और यही लाइन पैरेलल है किसे? BC को. व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव दैट AD डिवाइडेड बाय DB इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाय EC. ये हमें प्रूव करना है. ठीक है ना बेटा? तो लेट अस मूव टुवर्ड्स इट. हाँ, तो प्रूफ के लिए हम चले जा रहे हैं. तो अब हमें पता चला इन ट्राइंगल AB व्हाट वी आर गिवन, तो हमारे पास दिया गया है, शाबाश, इन ट्राइंगल ABC. ठीक है बेटा? DE इज पैरेलल टू BC, DE पैरेलल दी गई है BC को एंड इंटरसेक्ट्स, और क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है किससे?
AB and AC at points, किस किस पॉइंट पे, शाबाश, at points D and E respectively. ठीक है बेटा, what we have to prove, then these two sides are divided in equal proportion, that is AD divided by DB equals to AE divided by EC. ये हमने प्रूव करना है। तो हम क्या काम करेंगे, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या काम करेंगे, हम पहले ज्वाइन BE, एक तो हमने ज्वाइन BE को किया, ठीक है ना बेटा, और ज्वाइन किससे किया, DC को। ज्वाइन पहले हमने क्या काम किया, ज्वाइन BE एंड DC आल्सो, और फिर और क्या काम कर रहे हैं, आल्सो ड्रा DM एंड EN। DM और EN को हमने क्या काम किया, परपेंडिकुलर। आल्सो ड्रा DM एंड EN परपेंडिकुलर्स ऑन साइड्स। देखो बेटा, DM को हमने किस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, AC पे, एंड sides AC and AB respectively। ठीक है ना बेटा, now proof, we know that, हमें पता है कि एरिया ऑफ, अगर हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, देखो बेटा ADE हमारे पास एक ट्रायंगल है, क्या है, शाबाश, AD और E यहाँ पे ट्रायंगल हमारे पास है। तो अगर हम ये वाला साइड AD लेंगे तो ये वाला साइड है, और AD पे परपेंडिकुलर है कौन सा, EN, शाबाश। वी नो दैट एरिया ऑफ ADE का एरिया है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है ना बेटा, तो दैट इज एरिया ऑफ ADE इक्वल्स टू बेस इनटू परपेंडिकुलर से हम कह रहे हैं, ठीक है ना, या बेस इनटू हाइट, हाफ ऑफ, तो बेस यहाँ पे AD है, वेरी गुड, into what is height, that is EN, let us assume, let us take it as first। ठीक है बेटा, also अब अगर बात BD की जाए तो एक ट्रायंगल BD को आप जब लेंगे तो इसका ऑल्टीट्यूड भी EN ही है। ठीक है ना बेटा, तो जैसे कि यहाँ पे B, दिस इज D, और यहाँ पे E, तो यहाँ से भी ऑल्टीट्यूड N ही आ रहा है। ठीक है ना बेटा, also area of BDE equals to half of, हाँ, बेस, तो यहाँ पे बेस क्या है, BD into EN। ठीक है ना बेटा, तो दिस इज सेकंड। तो इसका रेशियो, इसका AD by DB कैसे आएगा, जब हमने यहाँ पे इनको एक दूसरे से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना बेटा, तो डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड वी गेट, दैट इज, तो जब हमने इक्वेशन फर्स्ट को किससे डिवाइड किया, सेकंड से डिवाइड किया, तो यहाँ पे हमने प्रूव क्या करना था, AD डिवाइडेड बाय DB इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाय EC। ठीक है ना, शाबाश। तो डिवाइड, तो यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ BDE इक्वल्स टू, हाँ, हाफ ऑफ AD into EN divided by, whole divided by 1/2 of AE into EN। देखो बेटा, EN gets cancelled, 1/2 cancelled। ठीक है बेटा, शाबाश। Now we will take it as area of ADE divided by area of BDE equals to AD divided by DE। सॉरी, यहाँ पे BD है, AE नहीं है। ठीक है ना बेटा, तो ये क्या, ये हमने कौन से, एरिया BD इक्वल्स टू 1/2 ऑफ, हाँ, BD इंटू EN है, BD, सॉरी यहाँ पे मैंने AE लिखा था, सॉरी यहाँ पे BD आएगा। ठीक है, क्योंकि ये इस ट्रायंगल का एरिया है 1/2 ऑफ बेस, तो BD यहाँ पे इंटू EN, तो वी कैन, here we can take it as BD divide AD divided by DB, या BD भी हम लिख सकते हैं, यहाँ DB हम लिख सकते हैं, हमने DB यहाँ पे लिया है तो DB ही लिखेंगे। ठीक है बेटा,
हाँ डी बी। क्लियर, इतना समझ आया ना, शाबाश। लेट अस टेक इट एज इक्वेशन थर्ड। तो इसे हम इक्वेशन थर्ड लेंगे। देखो फिर से अगर हम इस साइड चले जाएंगे ये रेशियो निकालने के लिए, तो फिर से हम ये ट्राइंगल ले सकते हैं। तो यहाँ पे ट्राइंगल ये है, फिर से ए डी ई, तो ऑल्टीट्यूड इस साइड से दैट इज डी एम, अगर हम ऑल्टीट्यूड कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। तो इसका एरिया ए डी ई का एरिया फिर से है एरिया ऑफ 1/2 ऑफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे बेस चेंज हो जाएगी और हाइट भी चेंज, तो यहाँ पे हाइट ऑल्टीट्यूड डी एम बन जाता है और बेस यहाँ पे ए ई है। तो और तो दूसरा साइड यहाँ पे अगर इस ट्राइंगल की बात की जाए, तो ट्राइंगल सी डी ई, तो फिर से यहाँ पे डी एम ऑल्टीट्यूड आ रहा है, ठीक है ना बेटा। तो फिर वो साइड, उस साइड का जब हम प्रपोर्शन लेंगे, तो उसके बाद इसके साथ देखेंगे कहीं पे लाइक टर्म मत आ जाएगा या लाइक साइड्स मत आएंगे, कहीं पे कैंसलेशन मत हो जाएगी, तो वो आगे पता चलेगा, ठीक है ना बेटा। तो वी कैन राइट इट एज आल्सो एरिया ऑफ ए डी ई, लेकिन यहाँ पे ट्राइंगल सेम है लेकिन ऑल्टीट्यूड और बेस चेंज हो जाएगी। हाफ ऑफ बेस, तो दैट इज ए ई इनटू हाइट, दैट इज डी एम। दिस इज इक्वेशन 4 एंड area of CDE equals to half of EC हमने यहाँ पे लिया, ठीक है ना बेटा, into DM। दिस इज इक्वेशन 5। फिर से क्या काम करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 4th बाय इक्वेशन 5th वी गेट। तो जब हम इक्वेशन 4th को 5th से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या यहाँ पे आएगा, शाबाश। वी कैन राइट एज therefore area of ADE divided by area of CDE equals to 1/2 of AE into DM whole divided by 1/2 of EC into DM। तो DM DM gets cancelled, half cancel हो जाएगा, ठीक है ना। तो area of ADE divided by area of CDE equals to AE divided by EC। देखो बेटा अगर हम इसको कंपेयर करेंगे इक्वेशन थर्ड के साथ, तो यहाँ पे अगर इसको कंपेयर करेंगे, यहाँ पे ADE है, यहाँ पे AD है, यहाँ पे BD है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, BDE, या यहाँ पे CDE होना चाहिए था, लेकिन वो पॉसिबल अगर देखेंगे ट्राइंगल में अगर है तो वी विल देन रिप्लेस इट। देखो बेटा आपने 9th में थॉर्म पढ़ी है, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। देखो बेटा ट्राइंगल BDE and CDE they are lying on the same base, the base is DE। तो यहाँ पे बेस जो इनकी सेम बेस है DE and they lie between the same parallels, और यहाँ पे जो parallels है that is DE and BC। तो we can say that they are then equal in area, ठीक है ना बेटा। we know that, हम लिख सकते हैं we know that triangles on same base and between same parallels or equal in area। क्या है वो, equal in area। therefore तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं area of BDE या area of CDE, इसी को फिर रिप्लेस करेंगे, area of CDE इक्वल्स टू एरिया ऑफ BDE। देखो बेटा अगर हम यहाँ पे इक्वेशन 5th आई थी, अगर हम इसको इक्वेशन 6th रख लेते हैं, ठीक है ना। तो पुट एरिया ऑफ CDE इक्वल्स टू एरिया ऑफ BDE इन इक्वेशन 6th वी गेट। तो हमारे पास क्या आ रहा है, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है ना। एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ BDE किसके बराबर निकला है हमारे पास, AD डिवाइडेड बाय DB। वेरी गुड। तो हम इक्वेशन कौन सी थी, थर्ड। थोड़ा सा यहाँ पे रब मैं करने जा रहा हूँ, या इसको ऐसे रखेंगे हम यहाँ पे लिखते हैं इसे, ठीक है बेटा। तो जब हम इस इक्वेशन को रिप्लेस करते हैं, या एरिया ऑफ CDE को हमने किससे रिप्लेस किया, BDE से, इन इक्वेशन 5th, तो वो क्या है, एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ BDE इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाय EC, ठीक है बेटा। तो जब हमने इसको रिप्लेस किया यहाँ से,
तो हमारे पास इक्वेशन थर्ड क्या थी? हाँ, तो इक्वेशन थर्ड है हमारे पास एरिया ऑफ एडी डिवाइड बाय एरिया ऑफ बीडी। जब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन, ये हम इक्वेशन सेवंथ रखते हैं, इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन सेवंथ वी गेट, तो तब जाके एरिया ऑफ एडी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बीडी, एरिया ऑफ एडी डिवाइड बाय एरिया ऑफ बीडी, तो दे गेट कैंसल्ड। तो यहाँ पे हमारे पास अब क्या रह जाता है, दैट इज एडी डिवाइडेड बाय डीबी इक्वल्स टू, तो वो किसके बराबर आ रहा है, शाबाश, इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय ए सी, ठीक है ना बेटा। तो देयरफॉर hence it gets proved. This is all about regarding this Thales theorem, yeah, basic proportional theorem. That is, if a line is drawn parallel to one side, intersects the other two sides at two distinct points, then these two sides are divided in equal proportion, in equal ratio. तो जैसे कि हमें वही हमने प्रूव करना था, AD डिवाइड बाय DB इक्वल्स टू AE डिवाइड बाय AC, ठीक है ना बेटा। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होप दैट आपने अंडरस्टैंड किया होगा। कहीं समझने में कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो यू विल कॉल ऑन माय नंबर, ठीक है ना। तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।